Sir, we can start now. We are live on Facebook. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Hello friends. So उस दिन हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्सेस टॉपिक देखा. Now let's move to the TDS. Again, a very important topic. Tax deducted at source. GST में इसका इम्पैक्ट क्या है? इनकम टैक्स में तो हम लोगों ने देख लिया होगा, आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन जीएसटी में भी इसका इम्पैक्ट आ गया टीडीएस का. तो वो क्या है देखो. हालांकि गवर्नमेंट ने ये सबके लिए अभी मैंडेटरी नहीं किया. लिसन, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं. सपोज यू पीपल आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड आप लोगों ने कोई सर्विसेज या गुड्स, ये जो एंटिटीज मेंशन किए ए टू एफ, you provided the goods or services to these entities A to F, then these entities means वो कौन से entity देखो, department or establishments of the central government, any department or establishment of the central government, or local authority like municipal corporations and all. Governmental agencies, we can say, take the example of SEBI, Reserve Bank of India, ये सब governmental agencies हो गए. Then an authority or a board or any other body set up by an act of an parliament or a state legislature or established by any government, मतलब state or central, with 51% or more participation by way of equity control to carry on the functions. Means there might be any body in which the central or state government holds 51% of stake. मतलब जो भी बॉडी है उसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक होना चाहिए. देन सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज पीएसयूज. सो लिसन, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. इफ एनी पर्सन लाइक सपोज मी, yeah, you people who are registered under GST, if giving the services to these people who are mentioned in A to F, अगर हम लोग इनको सर्विस दे रहे या हम लोग इनको गुड्स का सप्लाई कर रहे, तो देखो जो पेमेंट करता है, ध्यान से सुनना, पेमेंट कौन कर रहा है, देखो हम इनको सर्विस दे रहे, मतलब दिस पीपल A to F mentioned people are going to make the payment to us. तो ये जो पीपल है, ये जब हमें पेमेंट करेंगे तो हमारा ये लोग टीडीएस काटेंगे, tax deducted at source. These people will deduct the TDS of us, right? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सपोज आई गिव द सर्विसेज टू हिम, मैंने इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया, आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड आई लेवी द बिल ऑफ 10 लाख रुपीज टू देम, मैंने उनको 10 लाख रुपए का, लेट्स से लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आई रेज द बिल ऑफ 10 lakhs फॉर द कंसल्टेंसी सर्विस. सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट बाय द लोकल अथॉरिटी टू मी, when local authority makes the payment to me, local authority will deduct the TDS on which amount, वो अपन देखेंगे अभी, राइट? तो किसे TDS काटना है, ये A to F में जो लोग दिए, those people will deduct the TDS of the service supplier or good supplier. Okay, very simple. Then अब सर क्या इसके लिमिट है, मतलब TDS कितने अमाउंट के ऊपर गया तो ही इन लोगों को काटना है, और वो कितना % काटना है वो नीचे दिया. लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. तो देखो वहां पे क्या लिखा है, TDS is required to be deducted, those people required to deduct the TDS on the payment to the supplier. I am the supplier, तो कब काटना है देखो, of the taxable goods or service where the value excluding taxes or the sales of such a supply under contract exceeds 2,50,000 rupees. What does this mean, guys? Very simple. देखो, suppose I provide the services to the municipal corporation, okay, and the value of that service is 2 lakh, let's say 2,40,000, and GST on that is 30,000, right? So total bill amount is 2,70,000 total invoice, because value of service is 2,40,000 and I said the GST is 30,000, means total value of service is 2,70,000. Whether the governmental agency will require to deduct the TDS, tell me.
द आंसर इज नो गाइस. व्हाई? बिकॉज जो ये आपको टीडीएस का लिमिट देखना है, वो लिमिट आपको टैक्सेस को एक्सक्लूड करके, जीएसटी मैंने बताया 30,000 का है, तो ये टैक्सेस को अगर आप एक्सक्लूड करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी है? योर वैल्यू ऑफ सर्विस इज ओनली 2,40,000, which is less than 2,50,000. Hence, you are that governmental department A to F people are not required to deduct the TDS. Are you getting the point? So, जो value of service है, actual value of service excluding taxes should be about 2,50,000. Only then it is required to deduct the TDS. Okay. Now, सर हमें ये भी बात बता दो, मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस एग्जैक्ट 2,50,000 है. कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है. यस आई नो sir, if my value is exact 2,50,000, now tell me whether I require to deduct the TDS. The answer is no. The reason being, guys, वहां लिखा है if it exceeds 2,50,000, अगर वो वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड हो गई तो ही टीडीएस काटने की जरूरत है, अदरवाइज टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं. सेकेंड पॉइंट, लिसन नाउ. अब क्या हुआ गाइस, ये अमाउंट, कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है, कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स से मेरा बिल है 3 लाख रुपीस का. ओके, आप पेपर पे ले सकते हो. माय बिल इज ऑफ 30 लाख रुपीस. मैंने गवर्नमेंटल एजेंसी को 3 लाख रुपए का बिल किया, जिसके ऊपर मैंने 50,000 रुपीस का जीएसटी लेवी किया. राइट, सो टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 3,50,000. ओके, तो आपने पेपर पे लिख लिया 3 लाख का वैल्यू एंड 50,000 का जीएसटी. नाउ पहले तो ये सवाल आया, वेदर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय दैट ए टू एफ पर्सन. ये जो हमने देखे ए टू एफ पर्सन, whether TDS is required to be deducted? The answer is yes. Why? Because the value exceeds 2,50,000. Value exceeds to, so definitely we have to deduct the TDS, right? Now, अब ये कितने रेट से डिडक्ट करना है, कितने रेट से और कौन से वैल्यू पे डिडक्ट करना है? क्या ये TDS 3,50,000 पे डिडक्ट होगा या ये TDS 3 लाख पे डिडक्ट होगा? राइट, तो द आंसर इज TDS would be deducted on only the value of service. So what is the value of service, guys? The value of service is rupees 3 lakhs and not 3,50,000. So TDS would be deducted on 3 lakhs and at what rate? तो उन्होंने बोला है 1% CGST का and 1% SGST का. मतलब क्या? टीडीएस सामने वाला, मतलब ये गवर्नमेंटल एजेंसी जब मुझे पेमेंट करेगी, ध्यान से सुनना, आप पेपर पे लिखे होगा इस 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ सर्विस, 50,000 इज द जीएसटी. नाउ टीडीएस कितना काटना पड़ेगा? देखो 3 लाख का 1% सीजीएसटी मतलब 3,000 सीजीएसटी काटना पड़ेगा और 3,000 एसजीएसटी का काटना पड़ेगा. 3,000 सीजीएसटी 3,000 एसजीएसटी मतलब मुझे पेमेंट करते समय 3,50,000 का टोटल पेमेंट करना है. ध्यान से सुनो, 3,50,000 टोटल पेमेंट करना है, उसमें से 6,000 रुपीज डिडक्ट होगा. मतलब मुझे सामने वाला पर्सन जब पे करेगा, ही विल पे मी 3,44,000 रुपीज. आई होप द आइडिया इज क्लियर. ओके सर, हमारे दिमाग में एक सवाल है, वो 6,000 रुपए जो हमारे काटे उसने 1% जीएसटी काटा, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो उसका क्या करेगा? क्या वो उसके पास रहेगा? द आंसर इज नो गाइस. वो जो अमाउंट है 3,000 का, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. वो पर्सन को कहां पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को, टू द क्रेडिट ऑफ सर्विस सप्लायर. मतलब मेरे क्रेडिट में, मेरे जीएसटी नंबर पे वो टीडीएस का अमाउंट जमा करेगा. ओके, सो दैट आई कैन टेक द क्रेडिट ऑफ दैट जीएसटी. ओके, गॉट द पॉइंट. सो गाइस, आई होप आइडिया इज क्लियर. फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग क्या क्या देखा. गाइस हम लोग ये बस एक ही चैप्टर देखने वाले हम लोग. टीडीएस बड़ा सिंपल टॉपिक है, मैं पूरी जान लगा के आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. 2,50,000 के ऊपर वैल्यू गई तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है. टीडीएस डिडक्ट सिर्फ इन लोगों को करना है, मतलब आपने अगर इनको ए टू एफ को सर्विस प्रोवाइड की तो ही टीडीएस का डिडक्शन आएगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. आपने मुझे सर्विस दी, क्या मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो. आपने किसी और को सर्विस दी, क्या टीडीएस? सिर्फ ए टू एफ में जो लोग हैं वही लोगों को अथॉरिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की. ओके, देन कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? सीजीएसटी का 1%, एसजीएसटी का 1%. देन TDS would even be deductible on advance payment. If the government makes the advance payment to you guys, right? If the government made advance payment to you people, then at the time of making the payment, they have to deduct 1% CGST का TDS and 1% SGST का. Okay? इतना सा चैप्टर देखो, मैंने पूरा TDS चैप्टर आपके लिए समराइज करा दिया. बस अब ये 7 पॉइंट देखना है, 7 पॉइंट, एंड योर TDS चैप्टर विल बी ओवर. ओके, चल लेट्स स्टार्ट. पहला पॉइंट देखो, TDS to be deposited by 10th day of the next month
लेट पेमेंट वुड अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ 18%. मतलब क्या? लेट्स सी एग्जांपल, दिस इज सितंबर मंथ, राइट? तो सितंबर मंथ में, ध्यान से सुनना, इन द मंथ ऑफ सितंबर गवर्नमेंट हैज टू मेक मी द पेमेंट. उन्होंने मुझे पेमेंट करना है, राइट? तो गवर्नमेंट ने टीडीएस काट लिया मेरा 6000 का. तो सितंबर का पेमेंट उनको 10th डे ऑफ अक्टूबर तक करना है. नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर तक उनको पेमेंट कर देना है गवर्नमेंट को, जो भी मेरा टीडीएस काटा है. ओके, डन. अगर वो 10th अक्टूबर के बाद करते तो इट विल अट्रैक्ट द इंटरेस्ट, मतलब ये 6000 पे 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा. ओके, देन सेकंड पॉइंट, विद इन 5 days of crediting the amount so deducted to the government, the TDS certificate to be issued to the deductee. ध्यान से सुनना, देखो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज डिडक्टर और हम लोगों ने उनको सर्विस दी है, वी आर डिडक्टी, राइट? वी आर डिडक्टी. नाउ अब मेरा टीडीएस गवर्नमेंट ने काट लिया. वो जो A2F वाले लोग थे उन्होंने मेरा टीडीएस काट लिया और वो टीडीएस गवर्नमेंट को भी जमा कर दिया. लेकिन मेरे पास क्या प्रूफ है गाइस कि उन्होंने मेरा टीडीएस काट लिया? मेरे पास कुछ प्रूफ है? बिल्कुल नहीं है. तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने बोला ये जो लोग आपका टीडीएस काट रहे हैं और गवर्नमेंट को जमा करे, द पीपल हु आर डिडक्टिंग योर टीडीएस एंड मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट has to issue the TDS certificate to me so that I'll come to know कि इन्होंने मेरा इतने रुपए का TDS काटा है. Are you getting the point? They will deduct the TDS and pay to the government. At the same time, they have to issue the certificate to me as saying that we have deducted so much amount of TDS of yours. Okay, and if they fail to issue the TDS certificate, देखो 5 days के अंदर अगर उन्होंने TDS certificate, मतलब सितंबर का हमने देखा अक्टूबर तक पेमेंट करना है, विद इन 5 days मतलब 15th अक्टूबर तक उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, 15 के बाद 100 रुपीज पर डे का लेट फी शुरू हो जाएगा एंड मैक्सिमम इट वुड बी अप टू 5000 का लेट फी सीजीएसटी का एंड 5000 का लेट फी एसजीएसटी का. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इतना सिंपल है. ओके, देन थर्ड पॉइंट, TDS will be applicable only on taxable goods or services and not exempted supplies. मतलब क्या गाइस, देखो, if you people or me are providing the exempted goods और exempted service to the government, मतलब A2F जो लोग हैं इनको, वो गवर्नमेंटल एजेंसीज है सब, उनको अगर मैंने exempted goods या सर्विसेज सप्लाई की तो उसके ऊपर TDS नहीं काटना है. TDS सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर काटना है. देन नेक्स्ट, no TDS is required to be deducted where the payment is made to the unregistered dealer. However, TDS would be deductible if the payment is made to the composition dealer. मतलब क्या guys? मान के चलो I am unregistered under GST and if I am providing the services to the person mentioned in A2F, I am unregistered, I am not registered in GST, then it would not, मतलब that A2F person, governmental agencies will not required to deduct the TDS. उनको TDS काटने की कोई जरूरत नहीं. But हाँ, अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं, if I am registered under composition dealer, then they required to deduct the TDS. दो मतलब सिर्फ only in case of unregistered person they are not required to deduct the TDS. Then next, GTA services received by the person mentioned in A2F above shall be exempt. If I am a GTA person, goods again important mark कर दो, I am goods transport agency सनी देओल में, मैं निकला वो गड्डी लेके, है ना, राइट? तो उस केस में सनी देओल अगर उनका टीडीएस सर्विस देता है जीटीए की, तो सामने वाले को टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं. ओके, ग्रेट. सनी देओल मतलब वो जीटीए की सर्विस याद रखने के लिए बोला. देखा आपने गदर? हाँ, उसमें दिया है, राइट? चलो नेक्स्ट, नो टीडीएस would be attracted if the supplies in between mentioned in A2F. मतलब क्या, ये जो A2F में mentioned लोग हैं, ये A2F में ये अगर एक दूसरे को सप्लाई कर रहे, if suppose department of central government making the supply to the local authority या local authority making the supply to the societies registered या PSUs, तो फिर ये आपस में अगर transaction कर रहे, there is no need to deduct the TDS. And last point guys, if PSUs are giving services to the PSUs, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर्विस दे रहा है तो भी TDS काटने की कोई जरूरत नहीं. If these people are giving the services या goods, supplying the goods among themselves, then there is no need to deduct the TDS. Guys, very simple topic. इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है इंस्टीट्यूट में. ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है TCS, वो भी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आपकी क्लास को खत्म करेंगे. ये क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. ओके, लिसन. सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट चालू किया, राइट? लेट्स से एग्जांपल चालू चाइनीज, है ना, चालू चाइनीज, ये एक रेस्टोरेंट वाले का नाम है. यू स्टार्टेड दिस रेस्टोरेंट चालू चाइनीज. नाउ
you are going to make the supply of that Chinese product, जो भी आप चाइनीज सिजलर बनाते हो या मंचूरियन या जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, है ना, भूख लगी है, शाम का टाइम है, आपको भी लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है, तो ये जो सप्लाई आप करते हो किसके थ्रू? Zomato, Swiggy, these are electronic commerce operator. These all are electronic commerce. If you're making the supplies through them, right? Suppose a third person, Mr. Gopal ordered, right? Yeah, Miss Shruti ordered. क्या order किया उसने? Let's say Manchurian she ordered to Chalu Chinese. अब Chalu Chinese क्या? Through Swiggy or Zomato, electronic commerce operator. So this electronic commerce operator will take the goods from Chalu Chinese and supply it to Shruti. Okay, so at the time of making supply, देखो अब ये पैसा श्रुति ने किसको पे किया guys? Shruti paid the amount to Swiggy as Zomato. So Swiggy as Zomato आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है. तो ऐसे केस में दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट, ध्यान से सुनो, ये क्या करता है? चालू चाइनीज से टीसीएस कलेक्ट करता है. चालू चाइनीज इज आवर रेस्टोरेंट, तो उससे टीसीएस कलेक्ट करता है और वो टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है. तो देखो वहां पे क्या लिखता है? टीसीएस को कलेक्ट करना पड़ेगा. देखो, आर यू ई कॉमर्स ऑपरेटर? यस, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं. मतलब कौन हूं? स्विगी जोमैटो. देन वेदर सप्लायर मतलब हमारा चालू चाइनीज मेक्स द टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू ईसीओ. यस, श्रुति को कौन सप्लाई कर रहा है? श्रुति को सप्लाई कर रहा है गाइस स्विगी या जोमैटो ई कॉमर्स. यस, whether the consideration is collected by the ECO, आप पेमेंट किसको करते हो? ECO को. yes sir. then ECO देखो कितना liable to collect the TCS at the rate of 1%. guys देखना, वहां 1% CGST 1% SGST था, यहां 0.5% CGST 0.5% SGST है, मतलब टोटल 1% है. ध्यान से सुनना, टोटल 1% कलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको फटाफट देख लेते. 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड भी कर सकते हो. पहला पॉइंट, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है. देखो टीसीएस क्या लिखता है? लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस ऑफ एट द रेट ऑफ 1% ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. सर व्हाट डू यू मीन बाय नेट वैल्यू? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. सपोज चालू चाइनीज ने श्रुति को 2 प्रोडक्ट सप्लाई किए थे, राइट? तो वो 2 प्रोडक्ट की कॉस्ट थी लेट्स से 1000 रुपीज. अब श्रुति को एक प्रोडक्ट ठीक लगा और दूसरा प्रोडक्ट उसने पैकिंग देख के बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, और वो प्रोडक्ट था 200 रुपीज का. टोटल 1000 रुपीज का था, तो 1000 में से एक 800 का, एक 200 का. तो श्रुति टुक 800 वाला प्रोडक्ट और उसने वापस कर दिया 200 वाला प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. सवाल ये उठा कि अब टीसीएस 1000 पे आएगा या 800 पे? तो उन्होंने बोला है टीसीएस 800 पे आएगा नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज पे. नेट वैल्यू मतलब क्या गाइस? देखो, टोटल सप्लाईज माइनस रिटर्न जो किया हुआ. अगेन टीसीएस 10th डे को डिपॉजिट करना है नेक्स्ट मंथ के. जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे जीएसटीआर 8 में रिटर्न भरना है. 8 जीएसटीआर 8 फॉर्म है उनके लिए, राइट? एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल रिटर्न. लास्ट में आपने देखा होगा रिटर्न्स चैप्टर में, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है. कौन से डेट तक भरना पड़ता है गाइस इनको? ई कॉमर्स ऑपरेटर को 31 दिसंबर तक. नोट डाउन, 31 दिसंबर तक इनको रिटर्न भरना पड़ता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. देखो नीचे लिखा है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन फाइलिंग द रिटर्न, तो फिर वो कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ईयर 2021, मतलब मार्च 21 तक आपका ईयर है, राइट? अब मार्च 21 का एनुअल रिटर्न की डेट है, मार्च 21 के एनुअल रिटर्न दिसंबर में, मतलब 31 दिसंबर 21 तक, राइट? 31 दिसंबर 21 मार्च. आप पेपर पे निकालो जो भी मैं बोलता हूं. तो आप कब तक रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो? तो उन्होंने बोला है गाइज, मार्च के बाद का सितंबर जो आएगा, सितंबर 21, उसका ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर. सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, मतलब आपको जो 31 दिसंबर को भरना है वो, या फिर आपका 30 सितंबर महीने का ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप इस रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने देखो, आपकी ड्यू डेट तो कब है बेटा? 31 दिसंबर है एनुअल रिटर्न की फाइल करने की, लेकिन आपने रिटर्न को भर दिया लेट्स से जुलाई में फाइल कर दिया, मार्च के बाद जुलाई में. तो जुलाई 31 को फाइल किया, तो 31 जुलाई और सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर,
दैट इज 31st जुलाई। तो आप 31st जुलाई तक वो मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। Any authority, 6th point, any authority not below the rank of deputy commissioner shall serve the notice on is इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नोटिस सर्व करना है तो डेप्यूटी कमिश्नर या उसके ऊपर वाले रैंक वाले ऑफिसर ही कर सकते हैं। ओनली दोज ऑफिसर्स आर अथोराइज्ड टू इशू द नोटिस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। 7, TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनकम टैक्स में जो TCS, जैसा मान के चलो कि 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए और उसके ऊपर इनकम टैक्स का TCS अलग है। अपन किसके TCS की बात करें? GST के TCS की। तो मान के चलो वो 1 लाख के ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 10,000 रुपए का इनकम टैक्स का TCS है, 10,000 रुपए। तो GST का TCS कितने पे लगेगा? 1,10,000 या 1 लाख? तो 1 लाख पे लगेगा। इनकम टैक्स के TCS को उसको इंक्लूड नहीं करना है। 8th पॉइंट, टी बोर्ड टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द सेलर्स और ऑक्शनर। ये कुछ खास काम का नहीं है पॉइंट, इसको पढ़ के छोड़ देना आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट द TCS आर लायबल, कंपल्सरी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। मतलब ECO जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उनको, कंपल्सरी लायबल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। एंड लास्ट, पर्सन सप्लाइंग द गुड्स, मतलब जो चालू चाइनीज जो सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू? जोमैटो, स्विगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है और जो पर्सन उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, सो गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हो, राइट? ये फ्लो चार्ट आप ध्यान में रखो। 1% का TCS कलेक्ट करना है, 0.5% CGST, 0.5% SGST और सबसे इंपॉर्टेंट नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे, मतलब जो सप्लाई किया माइनस रिटर्न। और TDS 1%, 1% CGST का, 1% SGST का। वैल्यू 2,50,000 रुपए से ऊपर होना चाहिए एक्सक्लूडिंग टैक्सेस की वैल्यू। ओके, और A to F इन पर्सन को सप्लाई किया तो ही GST कलेक्ट करना है, अदरवाइज GST कलेक्ट नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Thank you very much, sir. So, if you guys have any question, you can directly ask to Professor Ashish, sir. There are few questions for which I want to answer. One is, can someone record this session and send it in the group? Shivani Jha. Shivani, you can do one thing. You can write us on support@supercrops.com and we will share the link directly to on your mail. Right. Second is from Jasmine. Can you change the time of CMA inter classes from 6:30? Actually, it is time of Ajaan. Jasmine, sure, we will think about this or we'll try to consider your request, but it also depend upon other student as well. So let us, check with our team members who are actually participating in this live session and who are actually working hard to happen this live session. तो आपको फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई चेंजेस होता है तो थ्रू ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया था, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट नोटिफाइड फ्रॉम आवर साइड। हाँ, शिवानी का हो गया आंसर एंड नेक्स्ट आई एम जस्ट tried but it's not working for. Yes, of course, Jasmine, you guys cannot record this session. If you wanted this recorded session, you can visit on our YouTube channel. There you can find this all these sessions which are happening for CMA Inter, CA Inter and CS Executive, all these 3 exams. वहाँ पे आप जाके स्पेसिफिक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट अस ऑन support@superprops.com, हम डायरेक्टली आपको शेयर कर देंगे ये लिंक्स। सो डोंट वरी अबाउट दिस रिकॉर्डेड सेशन। आप इसके साथ साथ ही आपको जो जिन जिन स्टूडेंट ने RTP सब्सक्राइब किया होगा हमारे वेबसाइट के थ्रू, रिवीजन एंड टेस्ट पैकेज, उस क्लासरूम में भी आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। सो डोंट वरी। Is there any other question you guys have to ask from Ashish sir? I don't think so.
So thank you, sir. Thank you very much, guys. Probably we will again connect with Ashish sir tomorrow at the same time 6:30 with the last with the इस series का last episode जो होगा वो कल होगा हमारा third for this inter level examination, and then Ashish sir will continue for final level examination in coming week. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, guys. Bye bye. Take care. Take good care of yourself. Bye bye.